Assalamu alaikum class 6. Welcome to the 6th lecture of computer. I'm your computer teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. We are studying chapter number 1, which is the uses of computers. We have completed the reading of this chapter, and by the reading of this chapter we get to know the uses of computers in many different areas of our daily life. Like we get to know the use of computers at our homes, at schools, banks, in the field of designing, shops and hotels, and many other different areas like or libraries also. Then in the previous lecture we did the book exercise, and also we started the comprehension of this chapter, and we did question number 1, 2 and 3. And now in today's lecture we are going to do the remaining. We're going to complete the remaining comprehension, and by doing that our chapter number 1 will be completed. So class, this is the list of all the remaining questions of chapter number 1, and these questions are from 4 to 11. So basically there are total 11 questions in this chapter, and I'm going to explain each question one by one, and you're going to write your answer in your write the answer in your own words. Okay. So question number 4, how are computers helpful in offices? कि offices में computers किस तरह से help कर रहे होते हैं? Basically, so first of all, you're going to give the heading of the uses of computers in offices. Okay, then write one line before writing the points in the writing the uses in the form of points. Okay, आपने पहले heading देनी है uses of computers in offices की, देन आपने वन बाय वन जो हमने यूजेस पढ़े थे ऑफिसेज के उनको एक्सप्लेन कर देना है, उनको वन बाय वन लिख देना है यहाँ पे. ठीक है, हमने जो यूजेस पढ़े थे उसमें मेरा ख्याल आई थिंक देयर आर 3 यूजेस लिस्टेड इन द बुक. Yes, which first one is the maintaining of office records, then communication, which is basically through the emails, and the third and the most important one is the typing and printing documents, which is basically which is a very basic task in daily office routines. Question number 5, what is office automation? Give an example. ऑफिस ऑटोमेशन का टॉपिक आपकी बुक में नहीं था, सो मैंने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोगों को अलग से लिखवाई थी, जो कि आप लोगों ने अपनी बुक्स पे लिखी भी थी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गिव द हेडिंग ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, and then you will write the definition, full definition of office automation. Okay, then again give the heading of example and write the example of office automation. ऑफिस ऑटोमेशन था क्या? बेसिकली कोलैबोरेशन, मतलब एक कोई भी ऐसा काम जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोलैबोरेशन से उन दोनों के मिलके किया जा रहा हो, वो ऑफिस ऑटोमेशन होता है. उसकी एग्जांपल में हमने पढ़ी थी बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस की, जो कि स्कूल्स में नॉर्मली कुछ स्कूल्स में यूज होती है, कुछ में नहीं होती है, डेली स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेने के लिए. सो यू आर गोइंग टू राइट दैट एग्जांपल अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जांपल. ओके. Question number 6, what are the uses of computers in libraries? Okay, and for this question also, first of all, you're going to give the heading, uses of computers in libraries. Okay, सबसे पहले आपने heading देनी है, then आपने जो जो भी uses हमने पढ़े थे उनको यहाँ पे लिख देना है, which were basically the 2 uses only. First one is the very important use, which is the maintaining of the डेटाबेस ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरीज, के जो जो भी लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं उनका डेटाबेस को मेंटेन करना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन लाइब्रेरीज. एंड द सेकेंड वन इज द कीपिंग ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ ऑल द बुक्स. ठीक है, जो जो भी बुक्स आप जो भी लाइब्रेरीज में आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जो भी बुक्स वो लेते हैं, कब वापस करते हैं, उनका ट्रैक भी रखा जाता है कंप्यूटर्स में, इसलिए भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं. सो बेसिकली देयर आर ओनली द 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स in libraries, and you're going to explain all these here under this heading. Question number 7, what is ATM? Also write the use of ATM. So ATM and for ओके, एटीएम भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बैंक्स के यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक्स के अंडर. एटीएम इज बेसिकली डिवाइस which is controlled by computers and installed outside the banks. And for this question also you're going to give the heading of the ATM first, then आप बेशक पॉइंट्स की फॉर्म में इसको ना लिखें, आप जस्ट एक पैराग्राफ बना लें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एक चीज लाजमी मेंशन करनी है, आपने फुल फॉर्म ऑफ एटीएम लाजमी बतानी है, विच इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ओके, देन आपने बताना है, ये वो पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने आंसर में जरूर लिखने हैं.
ठीक है। देन आपने बताना है एटीएम्स कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, वो जो बेसिकली बैंक्स के आउटसाइड बैंक्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। फिर इनका यूजेज के एटीएम्स को यूज किया क्यों जाता है, और एटीएम्स को यूज करने की एक बहुत बड़ी जो एक अच्छा यूजेज है कि एक बहुत एक इजी कर देता है बैंकिंग सिस्टम को एटीएम्स का यूजेज, वो ये है कि इट इनेबल कस्टमर्स टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम आप बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हो. सो बेसिकली दैट इज द यूजेज ऑफ एटीएम. Okay, so you're going to explain all these points in your answer. Next, question number 8, what is CAD? ठीक है, CAD is basically computer aided design. Okay, ये भी टॉपिक बुक में नहीं था, बट मैंने आपको लिखवाया था, हमने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया था. So for this topic, for this question also, first of all give the heading of CAD. Okay, CAD CAD. Then जो पॉइंट्स आपने लाजमी एक्सप्लेन करने, फुल फॉर्म ऑफ कैड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फुल फॉर्म ऑफ कैड विच इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन. देन राइट द फुल डेफिनेशन ऑफ कैड. ओके, आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है. देन गिव द एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल्स में हमने जो स्टडी किए थे वो सॉफ्टवेयर टूल्स स्टडी किए थे जिनके थ्रू कैड डिजाइनिंग होती थी, which were basically AutoCAD and CorelDRAW. ठीक है, so you're going to give the write the names of the software tools, designing tools which were used for CAD under the heading of examples. Okay, so this is question number 8. Next, question number 9, what is computer simulation? कंप्यूटर सिमुलेशन का टॉपिक भी हमारी बुक में नहीं था, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड करवाया गया था. सो फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द heading of computer simulation, then write down the complete definition of computer simulation. ओके, आपने इसमें बताना है कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होती है, वो उसकी पूरी प्रॉपर हेडिंग लिखनी है. और कंप्यूटर सिमुलेशन थी क्या, कि जो चीजें एक रियल इफेक्ट देना, रियल लाइफ इफेक्ट देना, हर चीज में ऐसा लगे जैसे वो रियल में है. ओके, अक्सर रियल में नहीं भी होती वो चीज, वो रियल में सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू में ऐसा इफेक्ट दिया जाता है. इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, जैसे एविएशन में एयरलाइन की जो पायलट्स की ट्रेनिंग में यूज किया जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन को. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जांपल. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Next, question number 10, what is e-commerce? Explain. Okay, for this question, first of all give the heading of e-commerce, then write the proper definition of e-commerce. Okay, कि आपने proper definition बतानी है e-commerce की कि क्या होती है e-commerce. ई कॉमर्स का टॉपिक भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बुक में नहीं था हमारी, लेकिन हमने इसको, मैंने आपको लिखवाया था, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. और बेसिकली ई कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है कि बाइंग और सेलिंग होती है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है मनी की, और जो हम घर बैठे हर कोई भी चीज खरीद सकते हैं, विच इज वेरी मतलब यूजली कॉमन नाउ डेज. ठीक है, कि हम आजकल हर कोई स्पेशली इन क्वारंटीन डेज में घर बैठे लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि बाहर ना जाना पड़े. सो ई कॉमर्स को आप ये एक्सप्लेन करना है ई कॉमर्स को इस तरह से यहाँ पे. देन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. ओके, वी स्टडीड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स विच वर बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट वन B2B, business to business. Second one B2C, business to customer. And the third one C2C, customer to customer. So just write down the names of the types of e-commerce, no need of explaining all the types. Okay, question number last question, question number 11, what is robot? How does robot help us? So this is the last question of our comprehension. Okay, आपने इसमें बताना है सबसे पहले what is robot? Robot क्या होता है? Robots are basically human like machines which were guided and controlled by the computers. Okay, so you're going to write it in your own words, the definition of robots, then give the heading of use of robots, कि robots कहाँ कहाँ use होते हैं, किस तरह से हमें help कर रहे होते हैं. So there are many use of robots in our daily life, and there are I think 5 to 6 points, 5 to 6 uses of robots written in your book. Okay, you can write any 2 or 3 points, it's your choice. You can write any 2 or 3 points under the heading of use of robots. आपने कोई भी 2 uses robots के बता देने हैं. Okay, so class, this is our today's lecture. We did comprehension question number 4 to 11. Okay, and by doing this we have completed the first chapter which is the uses of computers. I hope आप लोग को समझ आई होगी कि computers हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा होता है, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा होता है.
इसके साथ साथ ही बेसिक यूजेस के अलावा हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स भी पढ़े, जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ई कॉमर्स, ऑफिस ऑटोमेशन। हमें पता लगा कि एडवांस फील्ड्स में भी कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा होता है, कहाँ का हेल्प कर रहा होता है। मतलब हर तरह से आप कहीं भी देख लें कंप्यूटर कितना हेल्पफुल है, चाहे वो हमारे सिर्फ टाइम पास करने के लिए हो, चाहे हमारे डेली इंटरनेट के थ्रू हमें काम करना हो, कोई होमवर्क करना हो, कोई असाइनमेंट करनी हो उसके लिए हो, या फिर रोबोट्स की फॉर्म में हो, रोबोट्स में कहाँ का हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये चैप्टर सिर्फ ये एक था कि आपको पता लगे इस चैप्टर के थ्रू कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे होते हैं। And now it is a diary to do comprehension question number 4 to 11 on your copies as your classwork. This is your classwork, okay? And for homework, I've given you the diary to learn comprehension of chapter number 1. And that's all for now. Allah Hafiz everyone. Take care.